Hello and welcome everyone. In this Good Set Physics series, this is lecture number 6. And in this lecture number 6, we'll be dealing with chapter number 8. Yes, this is very short chapter and it won't take much of your time. So do it as soon as it gets posted. So starting from the first MCQ. As far as this chapter is concerned, only 2 to 3 questions, famous questions are there. In that, the famous part includes the characteristics of electromagnetic waves. There, you might be knowing it nicely. So उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. उसके रिलेटेड शायद एक आध क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन शायद वो इक्वेशन के स्वरूप में आ जाए. So first, TV waves range from the below given range. You are supposed to select the best one, मतलब the one which is belonging to TV waves. This will find in the uses of electromagnetic waves के अंदर आपको ये कंटेंट मिल जाएगा. वो आप देख के कर सकते हो. शायद उसकी रेंज 890 आसपास है, तो मतलब फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना. 54 to 898 मे बी. Sorry. Further, for a given electromagnetic waves, the magnitude of electric field is this much. The magnitude of magnetic field, very easy and very famous formula, E by B is equal to C. Yes, this is one of the property of electromagnetic waves. By using this, you can easily obtain the value of magnetic field. If E and B represents the electric and magnetic field vectors, which of the following indicates the direction of propagation of electromagnetic waves? Always, again, part of the properties of electromagnetic waves. मैं ये बार बोलूँगा क्योंकि यही है ये चैप्टर के अंदर. It's E cross B. E cross B gives you direction of propagation of electromagnetic waves. शायद ये चैप्टर आपका 15-20 मिनट में खत्म हो जाए. फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट. देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना. आपको वेवलेंथ नहीं पूछी है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो वो टेरा में आएगी. दैट्स 400 टेराहर्ट्ज टू 700 टेराहर्ट्ज. थियोरेटिकल क्वेश्चन. Sorry. A radio can tune into station in the range of 6 megahertz to 12 megahertz band. Corresponding wavelength band is blank. भाई frequency और wavelength के बीच में क्या रिलेशन है? F is equal to C upon lambda. तो बारी से पहले 6 megahertz लिखिए, तो उसके लिए lambda ढूंढिए, फिर 12 के लिए lambda ढूंढिए. You will get the answer. I think so. This question was also asked in the March exam 2025. A charged particle oscillates about its mean position with a frequency of 10 to the power 9 hertz. The frequency of electromagnetic waves. भाई चार्ज जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाली अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेगी. तो सेम 10 to the power 9 hertz ही आना चाहिए. What is the range of radio frequency band of FM band? ऐसे बहुत सारे बैंड्स हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड AM बैंड है, FM बैंड है. तो वो सारी बैंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. सो आप वो भी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मिल जाएगा. सो लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच travels, frequency is given to you, in a free space in x direction at a particular. Okay, this is a good question. हालांकि इजी है लेकिन फिर भी 25 megahertz is the frequency. You are given the frequency. Along the x direction वो wave travel कर रही है. At a particular point in a space where magnetic field is given to you, it's 2.1 into 10 to the power minus 8 into k caret. अब आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. अब जो वेव है वो कौन से डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है, मतलब i कैरेट में है. आपको k कैरेट में मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड j कैरेट में ही आएगी. क्यों? बिकॉज E cross B gives you direction of propagation of electromagnetic waves. So in that case J cross K. हालांकि सबके सब ऑप्शंस J में ही है, लेकिन माइनस J वाले नहीं चले. तो ये माइनस J वाले नहीं आएंगे क्योंकि आपका आंसर प्लस I कैरेट आना चाहिए. तो फिर E कैसे ढूंढने का? E by B is equal to C. You are given B, you can obtain electric field. The source of displacement current is. Displacement current का सोर्स कौन सा है? तो अगर आप उसकी फॉर्मूला जानते हो तब भी आपके लिए आसान है. तो जो मैक्सवेल ने बोला था ना कि भाई ये वाली गलती है एम्पियर की इक्वेशन में सॉरी,
तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज न्यू जीरो आई सी प्लस न्यू जीरो आई डी. ये आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट that is given by epsilon 0 into d phi upon dt. Yeah, it is electric flux. So change in electric field is responsible for the displacement current. Be careful about this. The range of wavelength for ultraviolet rays. तो वो पूरा जो बैंड है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल रीजन, वो सारा आपको मतलब पूरा आना चाहिए, तब आप ये सारी चीजें कर पाओगे. उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड एंड वेवलेंथ बैंड आपको याद होनी चाहिए. द डायमेंशन फॉर्मूलास न्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर इज ब्लैंक. अब आप समझिए, ये आपने देखा होगा जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी सॉल्व करते हमारा आंसर न्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर आता है. इनडायरेक्टली दिस इज nothing but refractive index, and refractive index is dimensionless. That means it's m0, l0, t0. So yeah, none of this must be the answer. The range of wavelength for X-rays, yeah, X-rays को भी आपको याद रखनी है. न्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी? अगेन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ न्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो. अब आप सोचिए, इसको सब्जेक्ट करेंगे तो उस तरफ लेके जाओ, तो अंडर रूट ऑफ न्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज 1 अपॉन सी. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि न्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का पूछा है, तो न्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो क्या होगा? 1 अपॉन सी स्क्वायर. सी इज वेलोसिटी, दैट मींस इट्स मीटर स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर. मैच कर लीजिए प्रॉपर ऑप्शंस, जल्दबाजी मत करिएगा ऐसे इजी क्वेश्चंस के अंदर. Frequencies of various radiations are given to you. Which of the following is true? अब इसमें भी आपको पूरा बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, या वी यूज्ड टू रिमेंबर लाइक दिस. रेडियो को डालो माइक्रोवेव में तो वो गर्म हो जाएगा, मतलब इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन, फिर आती है अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज और अंत में गामा रेज. या जब आप ऐसे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेकिन वेवलेंथ घटता है, तो उसके तहत आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा कैसे आएगा, क्योंकि विजिबल, रेडियो और अल्ट्रावायलेट के बारे में पूछा है. ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आ गए. इन मेडिसिन to destroy the cancer cells, gamma rays are used. For radiations of 9 gigahertz passing through air, the number of waves passing through 1 meter. भाई नंबर ऑफ वेव्स अगर ढूंढनी है तो नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा. ये गीगा मतलब 10 टू द पावर 9. ख्याल रखना 1 अपॉन लैम्बडा ही करना है आपको सिर्फ. द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स अभी बोला मैंने, वो स्पेक्ट्रम मैच करिए कौन कौन सी दी है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर अरेंज करिए. फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, सेम थिंग है लेकिन थोड़ा अलग अलग फॉर्म में दिया है, बातें तो वही है. इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस मच, देन द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मिलीमीटर, अगेन 1, लेकिन 1 मिलीमीटर में पूछा है. या तो ख्याल रखना भाई, द वेवलेंथ ऑफ शॉर्ट रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज आर दिस मच. ओके, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे 3 चीजें होनी चाहिए ना, शॉर्ट रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट और तीसरी एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 लिखा है. तो अगेन ये एक क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेना. हालांकि मेरे हिसाब से आपको अच्छे से आएगा भाई, कुछ है नहीं इसमें. द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम न्यू जीरो इज इक्वल टू. अब देखिए ऐसी सारी चीज़ों को आप कैसे टैकल करोगे. सो बेहतर है कि आप उसके रिलेटेड इक्वेशन को पकड़ लो. जैसे कि अभी सिखाया ना मैंने कि स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ न्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो है. तो न्यू जीरो यहाँ से आपको अच्छे से मिल सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना तो न्यू जीरो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू सी स्क्वायर. तो एप्सिलॉन जीरो तो अच्छे से आप जानते ही होंगे, तो उसका और इसका यूनिट इकट्ठा करके ढूंढ लीजिए. Which frequency of microwave used by which frequency of microwave? Okay, in the microwave oven. Microwave oven के अंदर 0.915 गीगाहर्ट्ज की रेंज यूटिलाइज होती है. So yeah, this is the correct answer. Further, electron microscope uses the electron for the which property? भाई इलेक्ट्रॉन का नेचर यूज करके ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम यूटिलाइज करते हैं, जिसके साथ अपने को एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा मिलती है.
A bulb of 800 watt electrical power has efficiency of 3%. It is kept at a distance from this. It is kept at the center of the sphere of diameter 20 centimeter. Then what is the force exerted? Wait, again, it's a good question. Very हालांकि आप देखो अगर तो वो आपको नॉर्मली सिखाया जाता है कि भाई फोर्स की वैल्यू क्या होती है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट इज dp अपॉन dt. हम ऐसा नॉर्मल बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब ये वाली जो चीज़ है उसको आप अच्छे तरीके से, मतलब टाइम को आप 1 सेकेंड ले लीजिए. अब आपको ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम. इट इज गिवन बाय डेल्टा यू अपॉन सी. या व्हाट इज डेल्टा यू. तो आप डेल्टा यू यहाँ पे, अच्छा पावर के टर्म्स में है ना, हाँ तो वही था ना, 800 वॉट है लेकिन उसकी एफिशिएंसी 3% ही है. तो उसमें से कितना पावर एमिट होगा, तो 3% ऑफ 800 जूल. 800 वॉट मतलब 800 जूल पर सेकेंड. एक सेकेंड में 800 जूल एनर्जी निकलती है, लेकिन उसकी 3% ही एफिशिएंसी है. तो उसका 3% लेने का आपको, या तो 24 हो जाएगा और आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा. डिवाइड बाय सी करना है, डोंट फॉरगेट. इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, भाई ये पुराना वाला क्वेश्चन है. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर हम रॉड और स्पीयर दोनों यूटिलाइज करते हैं. रॉड इंडिकेट्स द इंडक्टर एंड द स्पीयर इंडिकेट्स द कैपेसिटर. If a source is transmitting electromagnetic waves of frequency this much, then the wavelength is, भाई frequency और lambda के बीच में again it's a good relation. F is equal to c upon lambda. Dimension formula, it is repeated question. The sun delivers this much of watt per meter square, मतलब intensity है. Flux on the earth surface. The total power incident on the roof. Okay. अब आपको ये कब आएगा, जब आपको intensity की formula आए. It's power upon area. It's power upon area. Yeah, so we'll be able to solve it. ये पावर डिवाइड बाय एरिया ये रहा. या यू आर गिवन डायमेंशन ऑल्सो. तो सीधी सी बात, इसको उस तरफ लेके सॉल्व कर दीजिए. पावर कितना मिलेगा. राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अभी बोला मैंने, पावर अपॉन एरिया. इफ द अर्थ डिड नॉट हैव द एटमॉस्फेयर देन टेंपरेचर वुड ऑब्वियसली इट विल बी लेसर. Cellular phones use radio waves to transmit voice communication in blank band. भाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ही काम करते हैं ये लोग. As indicated below, which of the following equation is the Maxwell equation, Ampere Maxwell equation, जो मैंने सबसे पहले लिखा. It's close integration of B dot dl. ये C वाला ही आएगा ना, न्यू जीरो IC, क्योंकि E dot dl हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आता, मतलब C is correct answer. A light bulb is rated at 100 watt for 220 volt supply. The resistance of the bulb, भाई easy question. Power P is equal to V square upon R से कर सकते हुए. Which wave is used in telecommunication, मतलब टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम. ये तो देखा हुआ, हाँ अभी पूछा कोई क्वेश्चन है भाई. रेडियो वेव्स आप यूज करते हो भाई. या जैसे बोला था ये छोटा सा वीडियो होगा, फटाफट से काम खत्म कर लीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब करके रखोगे तो इमीडिएटली विल गेट द नोटिफिकेशन. Else if you are in direct or indirect contact, you will be getting it anyways. Yeah, so till then, bye bye, take care, see you next time.